Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, in the last class we completed with our chapter 10 agencies involved in community services. So today we will start our chapter 11 environmental pollution. So without wasting time, let's start. Introduction. Hi friends, how are you? When we are held up in a traffic jam, how do we feel? Absolutely right. We feel suffocated and exhausted due to heavy smoke and noise of horns. We can define pollution as the presence of unwanted substances in air, soil and water. Now let's discuss in detail about pollution and its types. Objectives. At the end of this course, you will be able to describe different types of pollution, explain air pollution, its effects, and also ways and means of controlling it. Describe water pollution, its effects, and ways and means of controlling it. Explain noise pollution and soil pollution. Friends, as we all know that air and water mainly supports life on the earth. But now these two are getting dirty day by day. As a result, there is no fresh air to breathe and clean water to drink. So let us discuss in detail different kinds of pollution. Actually, pollution is mainly of three types: air pollution, water pollution, and noise pollution. At first, let's know about the air pollution in detail. Air gets polluted when the unwanted substances, air pollutants, enter in it. But the question is, how these substances enter into the air? These substances, air pollutants, come due to burning of fuels, emission of poisonous gases from industries. This polluted air mixes with clouds in the atmosphere and brings harmful rain. This rain is also known as acid rain. Acid rain damages our buildings and monuments. Besides it, the large amount of carbon dioxide in air increases the global temperatures, which subsequently result in the melting of glaciers. It adversely affects our lungs, and we suffer from respiratory disorders. Now the question is how we can control air pollution. There are many things that we can do to control air pollution. It can be controlled by using clean fuels, CNG, in vehicles and industries, planting of new young plants, preferring walking over driving, using public transport for transportation. Now let's know about the water pollution. Like air, water also gets polluted. Look at this river. It is very dirty. It receives sewage from the homes and wastes from the factories. Some people also wash their clothes and throw waste in it. We should not drink this water as it contains germs and may result in diseases. What are its effects? Poisonous chemicals released from factories and industries enter the water bodies, due to which marine life is getting affected. If we consume such fishes, we will also fall ill. Can we control water pollution? The answer is yes. To control water pollution, we should not dispose garbage and harmful chemicals directly into ponds, lakes, and rivers. Friends, now it's time to check your understanding. Identify the activity which does not cause pollution. Friends, did you ever get annoyed by large music systems in parties, long traffic jams, and loud voice of your parents? Then how do you feel? This unwanted sound created by human activities is called noise pollution. Are you aware of this fact that noise pollution can cause hearing loss as well as heart problems? So we should try to make less noise. Friends, So as you all learn about the pollution and its type, right? So now
let's read about it. See, this is our chapter 11, environmental pollution. You all know what environment is. Environment where we all living beings live, right? And what pollution means? प्रदूषण. सो एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रदूषण फैल रहा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. पोल्यूशन. मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इन यूजफुल वंस इज कॉल्ड पोल्यूशन. सी व्हाट पोल्यूशन इज? जब हार्मफुल मटेरियल्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर वी कैन से हार्मफुल पार्टिकल्स जो जैसे एयर में होते हैं, वो यूज़फुल चीज़ों के अंदर जब मिल जाते हैं तो वो क्या फैलाते हैं? वो प्रदूषण फैलाते हैं, वो पोल्यूशन फैलाते हैं, राइट? सो व्हाट पोल्यूशन इज? मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इन यूजफुल वंस इज कॉल्ड पोल्यूशन. We are facing this big problem today, which is growing day by day with the advancement of science and technology. See, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है साइंस और टेक्नोलॉजी की, वैसे ही पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है. जस्ट बिकॉज बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बन रही है, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, उनसे जो केमिकल निकलते हैं, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं उन फैक्ट्रीज़ में से, जो वो हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं. हमारे एयर में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती हैं, जैसे कि आपने चैप्टर 7 में पढ़ा था, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. सो वो जो गैसेस होती हैं जो हमारे बहुत काम की होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, हम ब्रीथ करते हैं, हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है. सो उन गैसेस के अंदर हार्मफुल पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, राइट? The harmful substances which cause pollution are called pollutants. See, जिन harmful substances की हम बात कर रहे हैं, harmful particles की या materials की, उन्हें हम क्या बोलते हैं? pollutants. जो pollution create करते हैं, pollution करते हैं, उन्हें हम pollutants बोलते हैं. We must check the growth of this problem if we want to save the nature precious gift, air, water, soil and all the living beings. See, हमें इस प्रॉब्लम को, पोल्यूशन को कम करना होगा अगर हमें अपनी एयर, अपने वाटर, सॉइल, इन सब को पोल्यूशन फ्री बनाना है तो, राइट? हमें इस प्रॉब्लम पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज एयर पोल्यूशन हम खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इको फ्रेंडली व्हीकल भी यूज़ कर सकते हैं. हम लाउड म्यूज़िक सिस्टम्स, इन सब का यूज़ करना बंद कर सकते हैं, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा. हम वाटर को पोल्यूटेड रखने से बचा सकते हैं, जैसे कि लोग गार्बेज ऐसे नदी में डाल देते हैं, उससे हमारी रिवर्स और लेक पोल्यूटेड होती हैं, राइट? सो वो चीज़ पे अगर हम कंट्रोल करेंगे, उन चीज़ों को नहीं करेंगे, उससे हम पोल्यूशन से बच सकते हैं और अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स अबाउट द kinds of pollution. There are mainly 3 kinds of pollution: air pollution, water pollution and noise pollution. See, basically 3 टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं. एयर पोल्यूशन, जैसे कि एयर में मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज़ एंड ये जो फैक्ट्रीज़ होती है, इसमें से जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं वो हमारी एयर में मिक्स होते हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है. एंड जो व्हीकल्स चलते हैं रोड पे, उसमें से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है. वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जैसे गार्बेज डाल देते हैं, एंड कुछ लोग नदी किनारे जैसे अपने क्लोथ्स भी वॉश करते हैं, सो उससे भी हमारा पानी बहुत प्रदूषित होता है. हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. नॉइज़ पोल्यूशन, जैसे कि आपको बताया कि जैसे लाउड म्यूज़िक सिस्टम बजाते हैं ज़ोर ज़ोर से, उससे हमारे ईयर्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है. नॉइज़ पोल्यूशन बहुत हार्मफुल होता है हमारे ईयर्स के लिए. So let's learn about these pollution. Air pollution. When air is polluted by mixing of dust particles, harmful gases and smoke, it is called air pollution. See what air pollution is? When air is polluted, जब air प्रदूषित होती है,
बाय मिक्सिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं, स्मोक होता है, उसकी वजह से जो हमारी एयर होती है वो पोल्यूटेड होती है, उसे हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। एयर पोल्यूशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम स्पेशली व्हेन वी डिस्ट्रॉय forest which are major source of oxygen. It is very harmful and destructive to living organisms. see एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो पोल्यूटेड होती है। हम हार्मफुल गैस इनटेक करते हैं जिसकी वजह से हमारे लंग्स में इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, राइट। सो एयर पोल्यूशन से हम बच सकते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करें, राइट। बट जो कि हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, प्लांट्स की, ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा जो कटिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन कम नहीं हो पाता है। ये भी एक कारण है कि एयर पोल्यूशन की इंक्रीमेंट होती रहती है, वो ख़त्म नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स होंगे, फॉरेस्ट होंगे, तो ऑक्सीजन हमें अच्छे से मिल पाएगी और हम पॉल्यूटेड एयर को इनटेक नहीं करेंगे, राइट। सो इट इज़ हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। एयर पोल्यूशन हार्मफुल है हमारे लिए और डिस्ट्रक्टिव है। Now the causes of air pollution, there are so many causes of air pollution. We cause air pollution when we use fuels at home and for transportation. Burning of garbage, conventional fuels release smoke in the air which contains harmful gases. Air pollution also results from the burning of fossil fuels like coal, oil, natural gases and petrol. These are some of the causes of air pollution. एयर पोल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूल व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। गैसेस और स्मोक जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री से निकलती है उसकी वजह से, स्मोक एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स, जो स्मोक निकलती है व्हीकल्स में से, एमिटेड होती है व्हीकल्स में से, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग, गार्बेज को जैसे हम जला देते हैं, वो जो हार्मफुल गैस रिलीज़ होती है उस गार्बेज में से, उससे भी हमारी एयर पोल्यूट होती है। ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जैसे कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि दिवाली के टाइम पे कितने सारे क्रैकर्स जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है, कितना ज़्यादा स्मोक फैल जाता है पूरी एयर में। हमारी आइज़ को कितना नुकसान होता है उसकी वजह से, हमें अच्छी एयर नहीं मिल पाती ब्रीथ करने के लिए, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ वाटर पोल्यूशन, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस गेट मिक्सड इन वाटर इट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जब हार्मफुल सब्सटेंस वाटर में मिक्स होते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन इज़ अ मेजर थ्रेट टू लाइफ। वाटर पोल्यूशन इज़ अ मेजर threat, or we can say danger, to the life of all the living beings who live on land as well as who live on water. It affects our aquatic life. As I say earlier, जो हमारी aquatic life होती है, aquatic life means those animals who live in water, जो water में रहते हैं उनकी life affect होती है। किसकी वजह से? वाटर पोल्यूशन की वजह से। अगर वाटर पोल्यूटेड होगा तो उनकी लाइफ डेंजर में आ सकती है, एंड हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर। और हम अगर उसी पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे तो हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, सबकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा जो उस पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करेगा। सो एज वाटर इज़ अवर बेसिक नीड ऑफ अवर लाइफ, सो वी should have to keep it safe and polluted free, right? So it's our major duty to keep water pollution free, right? So causes of water, some causes of water are given below. Bathing and washing clothes in water, just as I said earlier that people bath and wash clothes in water, in lakes, rivers, right? Dumping of household waste, sewage, etc. Dumping means थ्रो अवे करना। हाउस होल्ड वेस्ट को हम ऐसे ही डाल देते हैं वाटर के अंदर,
डिस्पोजल ऑफ केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स वेस्ट डिस्पोज ऑफ होता है, मीन्स ऐसे डाला जाता है रिवर्स और लेक्स में फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री से सीधा। Silt and other suspended solids such as soil washed off from ploughed fields, construction and logging sites, urban areas and eroded river banks. See, silt is basically the fine sand और clay हम कह सकते हैं। other suspended solids means जो suspended जो ख़राब solids होते हैं उन्हें भी हम वाटर में dispose of कर देते हैं, such as soil wall from ploughed fields. Ploughed here means before starting the process of cultivation we done the plowing process. Plowing means जुताई जो हम करते हैं खेत की, लूजन अप करते हैं सॉइल को, उसे हम प्लॉइंग बोलते हैं। प्लॉइंग फील्ड्स जो हम सॉइल को लूजन अप करते हैं उसमें से जैसे सिल्ट और सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, मींस जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो अपने आप रिमूव हो जाते हैं हमारी सॉइल में से, और वो कहाँ पे वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं, रिवर्स, लेक्स, इस इनमें। तो जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, वाटर पोल्यूशन। कंस्ट्रक्शन एंड लॉगिंग साइड, लॉगिंग हियर बेसिकली मीन्स द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन द ट्रीज, वुड्स। फॉर एग्जांपल रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे कोई भी ट्री है तो उसको कट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लॉगिंग बोलते हैं। लॉगिंग साइट, अर्बन एरियाज एंड एरोडेड रिवर बैंक्स। एरोडेड रिवर बैंक्स मीन्स जो रिवर के किनारे होते हैं उनका एरोड हो जाना, उनका हट जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रिवर होते हैं उसके किनारों पे कुछ भी वेस्ट होता है या फिर कुछ भी स्टोन्स, वीड्स वगैरह सब पड़े होते हैं, वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट, वो सब हमारी रिवर में घुल जाते हैं, हमारे पानी में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, राइट। नाउ immersion of ashes of dead or the idols of gods and goddess in water. Immersion means बिल्कुल पानी में बहा देना, डुबो देना। ashes means parts of dead, means जैसे डेड बॉडीज होती हैं उनकी राख होती है जो बॉडी की, वो हम नदियों में ऐसे बहा देते हैं। आइडल्स ऑफ गॉडेस एंड गॉडेसेस विसर्जन करते हैं, जैसे हम कुछ भी मूर्ति होती है गॉडेस एंड गॉडेसेस की वाटर में, उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। जस्ट बिकॉज वो डिफरेंट सब्सटेंसेस से बने होते हैं तो वो हमारे पानी में घुल जाते हैं, तो वाटर तो अपने आप ही पोल्यूटेड हो जाता है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। Now, third one is noise pollution. The sound that is unpleasant to hear is called noise. See, noise basically हम किसे कहते हैं, जो unpleasant होती है, means जिसको सुनने से हमारे ईयर्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी ईयर्स की मेम्ब्रेन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे कान दुखने लगते हैं, राइट, उनमें पेन होने लगता है, तो वो अनप्लीजेंट होती है, उन्हें हम ज़्यादा देर तक सुन नहीं सकते, उसे हम नॉइज़ बोलते हैं। व्हेन नॉइज़ इंक्रीजेज टू अ लेवल दैट इज स्टार्ट्स इंटरफेयरिंग इन आवर डेली एक्टिविटीज़, इट इज़ सेड टू बी नॉइज़ पोल्यूशन। सी, ये जो नॉइज़ होती हैं वो अगर हमारी डेली एक्टिविटीज़ में, हमारी डेली रूटीन में इंटरप्ट करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बहुत सारे ट्रैफिक जैम हो जाता है तो बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे रोड पे चलते हैं और वो अगर लगातार हॉर्न बजाते रहें या फिर कुछ भी ऐसा हो, लोग बहुत जोर जोर से शाउट करने लगें, सो वो अनप्लीजेंट साउंड होगी, उसको हम ज़्यादा देर तक सुन नहीं सकते। उससे क्या क्रिएट हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। So there is a fact file, air pollution leads to breathing problems and acid rain. See, air pollution जो हमारे एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स घुले हुए हैं जिससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं नेचुरली। एंड एसिड रेन्स, एसिड रेन बेसिकली मीन्स फॉर एग्जांपल हमारे एयर में एयर पोल्यूशन की वजह से एयर में ऐसी ऐसी गैसेज, ऐसे ऐसे पोल्यूटेंट्स मिक्सअप हो जाते हैं जो रेन की फॉर्म में, वेट फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में हमारे लैंड पे आते हैं और हमारी फील्ड्स को, क्रॉप्स को और कई चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं।
उसे हम एसिड रेन्स बोलते हैं। मीन्स रेन जब होती है, रेन के अंदर ऐसे एसिड्स मिल जाते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है। सो एयर पोल्यूशन लीड्स टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड एसिड रेन्स। वाटर पोल्यूशन कॉजेज डिसीजेज एंड अफेक्ट द वाटर एनिमल्स। सी वाटर पोल्यूशन, अगर हम पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे तो बट ऑब्वियस डिसीजेज होंगी हमें हमारी बॉडी में, एंड इट अफेक्ट्स द वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स को इफेक्ट करता है वाटर पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन लीड्स टू हियरिंग प्रॉब्लम्स और डिसेबिलिटी। सी नॉइज़, जो अनप्लीजेंट साउंड को हम लगातार सुनते रहेंगे उससे हमारी हियरिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं एंड हियरिंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, सुनना बंद भी हो सकता है, राइट। सो दीज आर बेसिकली द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन डैट फ्रॉम एयर, वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उनके। Now come to the causes of noise pollution. Some causes of noise pollution are given below. Noise of loudspeaker at public meetings and social function. See, loudspeaker बहुत ज़ोर ज़ोर से बजते हैं पब्लिक मीटिंग्स में, सोशल फंक्शंस में, उससे noise pollution create होता है। High volume music in different ceremonies like marriages, birthday parties, etc. म्यूज़िक सिस्टम बहुत ज़ोर से बजाया जाता है, उससे भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। लाउड नॉइस ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स एंड जनरेटर्स। लाउड नॉइज़ नियर रेलवे ट्रैक्स एंड एरोड्रॉम्स। एरोड्रॉम्स मीन्स जो एयरपोर्ट होता है उन्हें हम एयरड्रॉम्स के बोलते हैं। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, loud noise of coolers and air conditioners. So these are some of the causes of noise pollution. So in this chapter we learned about the environmental pollution, kinds of pollution, air pollution, its causes, effects, water pollution and noise pollution. So this is all about this chapter. I hope you understand it. So thank you and take care.